অবস্থা পরিস্থিতি এবং পরিণাম এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমরা বর্তমানে জর্জরিত যারা এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি সমাজ। প্রথমে আজকে আমাদের ভালো লাগছে যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তথা বিহার এরিয়ায় উত্তর দিনাজপুর মালদা জেলায় যে সংগ্রামগুলো প্রথম শুরুয়াতটা আমি করেছিলাম 2012-15 সেপ্টেম্বরের আগে কোনো সংগঠন ছিল না। তো এই সংগ্রাম করতে গিয়ে আমি নিজের পরিবারকে হারিয়েছি, ভাইকে হারিয়েছি, বিভিন্ন আরএসএস হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। আমি স্কুলে ভারত সেবাশ্রমে পড়াশোনা করেছি বালুরঘাটে। ওখান থেকে শুরু করে আমি কেরালায় চলে গিয়েছিলাম, থিওলজিক্যাল স্টাডি করেছি, বিটিএইচ। আমার সেকুলার ডিগ্রি তখন নেই। যখন এই আদিবাসী যারা শোষিত নিপীড়িত মানুষদের যে সংগ্রাম প্রথমে শুরুয়াত হয়েছিল সেই কথা, এবং আমার এভিকশন অর্ডার আছে মোটামুটি 3 থেকে 3.5-4 বিঘা এখানে। এই অফিসটা আমি তালা ভেঙে আমি পুনরায় এটাকে খুলে দিয়েছিলাম বিগত দিনে। আজকে আমরা এখানে বসছি, খুবই ভালো লাগছে যে বহুদিন আগে সমাজ নামে কোনো অফিস ছিল বা বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থা কিছুটুকু টিকে আছে, কিন্তু বর্তমানে এই অফিসটা তেমন চলে না। আমিও তেমন সময় পাই না। আর বিশেষ করে যারা আদিবাসী এবং বিভিন্ন সমাজ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে, প্রথাগত শিক্ষা, তারা সামাজিকভাবে তারা জাগৃত না থাকায়, তাদের মগজের মধ্যে সঠিক বিচারধারা না থাকায় মানে এগিয়ে যাওয়াটা সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে আছে। তো আমি চাইছি যে বামসেটের সাথে প্রথম আমার পরিচয় হয় বিহারে বিএল মাধব যে স্টেজে প্রোগ্রাম করেছিলেন। তো আমি বিশেষভাবে তখন পলিটিক্যালকে পছন্দ করতাম না। আমাকে ইনভাইট করা হয়েছিল কয়েক হাজার মানুষ সেখানে। তো ওখানে যাওয়ার পরে আমি প্রোগ্রাম করলাম। তো আমার দিদি আমাকে এই লাইনে নিয়ে আসছে, সনদে আসলা। ও বলছে না, এরা পলিটিক্যালের লোক, করা যাবে না। তখন বিএল মাধবের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ছিল না। যাই হোক, আমাকে দেখার পরে ওনারা স্টেজ ছেড়ে চলে যান। তারপরে আমি প্রোগ্রাম শুরু করি। তারপরে দেখি আমার জার্সি নিয়ে বিএল মাধব সাহেবকে স্বাগত করা হচ্ছে। যাই হোক, যেদিন আমি বুঝতে পারলাম যে না, এরা যা সঠিক কাজ করছে, তখন থেকে আমি অ্যাকসেপ্ট করি বামসেটকে। তারপরে আমি লখনৌতে চলে যাই। লখনৌতে গিয়ে মিশ্রাম সাহেবের প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করে 5 ডেজ প্রোগ্রাম। তারপর থেকে বিস্তারিত জ্ঞান আমি ওখান থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করি। তো এখন যে সংগ্রামগুলো আমি করছি বা বিভিন্ন জায়গায় হাজার হাজার একর যে আদিবাসীদের সম্পত্তি রেস্টোরেশন চলছে, ইসলামপুর থেকে শুরু করে, বিহার থেকে শুরু করে, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, মালদা থেকে শুরু করে। তো যাই হোক, এটা আমার নিজস্ব ইয়ে নয়, আমার এটা স্বপ্ন আজকে সফল হচ্ছে। আগামী দিনে যারা এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি সমাজে যাদের ডিএনএ এক, আমরা সকলে যদি যৌথভাবে শুধু নিজের আদিবাসী সাঁওতালদের সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রামটা সমস্ত মানুষদের সংগ্রাম। 850 আদিবাসী শ্রেণীর, 1700 হচ্ছে এসসি এবং 3500 ওবিসি শ্রেণীর যারা মানুষ রয়েছেন, যারা প্রকৃত এখানকার মূল নিবাসী ভারতবাসী মানুষ, তাদের সংগ্রাম, তাদের রাজকে প্রতিষ্ঠিত করায় আমাদের স্বপ্ন। সকলকে আজকে যারা সমবেত হয়েছেন এই প্রেম কুমার ম্যাডাম সাহেবের কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত জ্ঞান নেব, শিক্ষা লাভ করবো এবং আগামী দিনে যে কর্মসূচিগুলো নেব এগিয়ে যাওয়া, এটাই সব ইয়ে রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মোহাম্মদ বাবু মহাশয়, খুব ভালো কথা বললেন। উনি জমি রক্ষা কমিটির প্রেসিডেন্ট, কিন্তু বামসেটকে অ্যাকসেপ্ট করে আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন আমি আমাদের মাস্টারমশাই রণাঞ্জনাথ মানিককে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। সার্বিক সভাপতি এবং আমার সমস্ত ভাই বোনেরা, আমরা বহুকাল থেকে যেহেতু বিদেশি যাকে বলা হয় আর্য সমাজ, এই সমাজের কাছে বহু রকম টেকনিক্যাল লাইন এই হেরে যাওয়ার পর আমরা যখন বনে বলে চলে গেলাম, ধ্বংস হয়ে গেল হরপ্পা মহেঞ্জোদারো, আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা, নিজস্ব সভ্যতা। এমনকি
আমাদের আদিবাসী ভাইদের যাদের ভাষা আছে, গান আছে, নাচ আছে, অনেক কিছু আছে, অথচ তাদের সমস্ত বই পুঁথি সমস্ত পুরি ছুরি শেষ করে দিয়ে তাদের কোনো বর্ণই রাখলো না এই আর্য সমাজ। তা সত্ত্বেও যখন আমাদের জ্ঞানই ফিরছে না, তখনই মুশকিলে পড়ে গেলাম। তাই আম্বেদকর বললেন, প্রথমেই চাই শিক্ষা, তারপর একতা সংহতি, তারপরে সংগ্রাম এক্সিস্ট। এই তিনটার ভিতরে আমাদের বাঁচা এবং বাড়ার কায়দা তিনি বলে গেলেন। সেই জন্য দেখা যাবে, লক্ষ্য করলে ইতিহাস যদি একটু ঘাঁটি, দেখা যাবে যে আমরা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। যারা অধিকার বঞ্চিত, সংগ্রামে অনড়, কোনোদিন বর্ষতা স্বীকার করেনি, তাদের নামই হলো জনজাতি বা আদিবাসী। তারা জঙ্গলে পালিয়ে গেছে, কিন্তু আর্যদের হয়নি, বর্ষতা হয়নি, স্বীকার করেনি। আর যারা সহজেই সময় মিলে বর্ষতা স্বীকার করলো, তার নামই হলো শূদ্র, মানে ওবিসি। আর যারা কিছু কিছু বর্ষতা স্বীকার করলো, কিছু কিছু করলোই না, খেয়ালখুলির মতো চললো, তারাই এসসি। এই এসসি এসটি থেকেই যখন বিভিন্ন বিদেশ আক্রমণ করলো, সফল পাঠান, মোগল, ব্রিটিশ, তখন তারা সুযোগ বুঝে কেউ মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করলো, সৈন্যবাহিনী হলো, মুসলমান হয়ে গেল, খ্রিস্টান হলো, অনেক কিছু হলো। এটাকে বলা হয় সংখ্যালঘু বা মাইনরিটি। যাই হোক, তো এখন আমাদের সংগ্রামের পথটা কি? আমি এইটাই ভাবি যে আম্বেদকর সত্যি আমাদের জন্য, এই নিচু সম্প্রদায়ের জন্য, যাকে আমরা অনেকদিন অস্পৃশ্য করে রাখিছিল, অথচ আমরা কিন্তু অস্পৃশ্য নই, শিক্ষার দিক দিয়ে গণ্ডগোল ছিল, তাই আমরা একতা ছিলাম না, আর সংগ্রাম করার অনেকগুলো চুপ বা কায়দা বা টেকনিক জানতাম না। যাই হোক, কিন্তু এই আর্যদেরকে পরাজিত করে ব্রিটিশকে আমরা যখন এককালে সমর্থন করেছিলাম, কিন্তু ব্রিটিশের ভিতরে ভালোই আমরা ফায়দা লুটে নিয়েছিলাম। এবং ব্রিটিশকে আম্বেদকর বাধ্য করাইছিলেন যে এই নিচু সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আপনি করেন, দেখেন আপনি অনেকদিন আমাদের উপকার করলে আপনারও উপকার করবে। সাইমন কমিশন করলেন, হান্টার কমিশন করলেন, অর্থাৎ এই নিচু সম্প্রদায়কে কীভাবে উপরে তোলা যায়। আর সমস্ত কাজে কংগ্রেস, একটা পার্টির নামই বলি, কংগ্রেস এবং এই মহাত্মা গান্ধী, করমচাঁদ গান্ধী, সব কাজে বাধা দিয়ে দিয়ে আমাদের সর্বনাশ করেছে। অথচ যেহেতু আমরা ইতিহাসটাই চলো জানতাম না, আমিও লেখাপড়া করলে ইতিহাস জানতাম না, কিন্তু সর্বনাশ। তখন কিন্তু আমরা কংগ্রেসকে দফায় দফায় ভোটে যে তেমনভাবে ভোট দিচ্ছি, কমর দুলে দুলে নাচিছি, মাথার বোতল নিয়ে নাচিছি, ডুবডুবি ফাটাইছি, অনেক কিছু। পরেই যখন দেখলাম কংগ্রেস আমাদের শেষ করে দিচ্ছে, কেমন বুঝতে পারলাম আম্বেদকরকে ধরে। তাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ, অন্য কিছু নয়। অফ দি আম্বেদকর, বাই দি আম্বেদকর, ফর দি আম্বেদকর, এটা যদি আমরা করতে পারি তবে আমার মনে হয় মুক্তি। তাছাড়া হিসিং ফিসিং ওই আটজন পার্টির ভিতরে কংগ্রেস ভাই করলাম, ভাই সবার উন্নতি হচ্ছে না, এটাও করবো না, এটা আপনারা বামপর করবো, তারপর বামপর গেলাম, ওরা তো ভালো তৈরি করে নিয়ে বেড়ালো 35 বছর, না বামপরটা করবো না, কিছু হচ্ছে না, না এবার তৃণমূল করবো। এইবার তৃণমূল ওখানে 10 বছর কেজি করে নিয়ে বেড়ালো, তারপর না হচ্ছে না, এবার বিজেপি করি, এই করে এই কেরি করতে করতে ফুটবল ফার্স্ট হয়ে আমরা ফার্স্ট হয়ে দেবো। ওরা ভীষণ কেরিয়ার ম্যান, হ্যাঁ, যার জন্য একমাত্র যদি বাঁচবার কারো বুদ্ধি থাকে, ওই আমি শুনলাম এই মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে, আমরা কলেজে পড়ি, হোক করি, হ্যাঁ, এগুলোর যদি মস্তিষ্ক ধোলাই করা যায় যে এইবার ধীরে ধীরে এদিকে আসো, তাছাড়া কিন্তু বাঁচার কোনো বুদ্ধি নেই। বাঁচা এবং বাড়ার বুদ্ধি হলো আম্বেদকরের নীতি। যাই হোক, আমার বুদ্ধিটা বড় করে ফেললাম, এই বলে আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ মাস্টার সাহেব। আর
আমাদের যে গতবারের লোকসভার এমপি প্রার্থী। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর্য থেকে শুরু করে আমাদের কিভাবে আমাদের মানে নিজের দেশে নিজেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করছে, আবার কিভাবে আমরা রুখে দাঁড়াবো তার সুন্দর একটা আমাদেরকে সন্দেশ দিলেন। এখন আমি মাস্টার মশাইয়ের নাম ভুলে গেছি, কিছু বিধান বর্মন বাবুকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। জয় পল্লীবাসী। আজকে আমাদের মহতী সভার সভাপতি, মঞ্চে ভূমিষ্ঠ বিভিন্ন নেতৃবর্গ, সুধীবৃন্দ এবং যারা উপস্থিত আছেন এই আমাদের সমাজের সংগ্রামী সাথীবৃন্দ। আমি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করি, কাজে শিক্ষার দিক থেকে অল্প একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি। এবং আমাদের আজকে যিনি প্রধান বক্তা প্রেম কুমার এরাম মশাইয়ের কাছেও আমি দাবি রাখবো যাতে কেন্দ্রীয় স্তরে এগুলো কি প্রতিফলন ঘটছে বা আমরা পাচ্ছি কিনা সেটা একটু জানানোর জন্য। তো শিক্ষা বিভিন্ন সমাজে যারা মনীষী তারা আমাদের পথ দেখান। সে সমাজ সংস্কারক হতে পারেন, শিক্ষাবিদ হতে পারেন, আবার অশিক্ষিত ব্যক্তিও হতে পারেন। তারা সামাজিক শিক্ষা কিন্তু আমাদের দান করেন। তো আমাদের যে মহাপুরুষরা আমাদের যে পথ দেখিয়ে গেছেন বা আমাদের সমাজের লোকের উন্নতির জন্য যা করে গেছেন চিন্তা ভাবনা, সেগুলো লিপিবদ্ধ আকারে আমাদের সবসময় বই পুস্তকে আমরা পাই না। বা আমরা যে শিক্ষা নিই সেই শিক্ষার মধ্যে আমাদের সেই সমাজের যে মহাপুরুষদের কিন্তু জীবনী পাঠ করানো হয় না। এরা বহু আমাদের যে সমস্ত সমাজের আন্দোলন আছে তারা আন্দোলনের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কখনোই গুরুত্ব পায় না। যার জন্যই আমাদের এখনকার বিভিন্ন যে শাসক দল সেই সমস্ত নেতাদের শোনা যায় যে কলকাতায় যেমন একটা সিধু কানু টহল নাম করা আছে, কিন্তু সিধু কানু সেটা সম্পর্কে কিন্তু তার ধারণা নেই। অনেক সময় তারা বলে আলোচনা করতে করতে বা বক্তব্য রাখতে যে সিধু কানু টহল বাবু নাম আমরা জানি, ডহর মানে যে কি সেটা কিন্তু জানি না, বলে দেবো সিধু কানু টহল বাবুকে আমরা আমাদের নমস্কার জানাই বা ধন্যবাদ। তাহলে তাদের আমাদের সমাজে যারা মনীষী তাদের সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই, শুধু নামটুকু জেনেছে যেহেতু তারা নেতৃত্ব স্থানীয় ছিলেন আমাদের, সেই জন্য একটু থেকে যায়, ছোঁয়া দিয়ে যায় যাতে আমাদের লোকগুলোকে তারা একত্রিত করতে পারে তাদের পক্ষে। সেই জন্য ঠিক সেই রকম এই সমাজের আরো যে সমস্ত মহাপুরুষরা আমাদের জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদের জন্য তারা সংগ্রাম করেছেন, তাই ফসল আমরা যে পাচ্ছি এই যে লিপিবদ্ধ করা আছে সংবিধানে, সেই সংবিধানের ধারায় পড়াশোনা করে কিন্তু আমরা শিক্ষিত হয়ে যে যেমন পাচ্ছি চাকরি পাচ্ছি সরকারি, বেসরকারি কিন্তু নয়। বেসরকারি হলে কি হচ্ছে যাদের হাতে আছে তারা কিন্তু নিজেদের সমাজের নিয়ে সেই যে চাকরির পদগুলো তারা করে নিচ্ছে। আবার সেখানে ক্রাইটেরিয়া দিয়েছে যে 51% যদি সরকারি অর্থ সেখানে না থাকে তাহলে সেখানে আমাদের যে রিজার্ভেশন চাকরি করতে সেখানে হবে না। তাহলে কি হচ্ছে যে আমাদের পয়সা অর্থাৎ আমরা যখন এই যে জিএসটি হোক বা যে কোনো ট্যাক্স হোক আমরা দিচ্ছি, অথচ তারা কিন্তু সেটা ভোগ করছে। আমাদের যারা শিক্ষিত বা আমাদের যে বেকার ছেলেমেয়েরা বসে আছে তাদেরকে কিন্তু দেওয়ার বা রিজার্ভেশন মানার চেষ্টা করে না। এখন যে একটা নতুন শিক্ষানীতি চলে এসছে যে অর্থাৎ নিউ এডুকেশন পলিসি, সেখানে যারা নতুন ছেলে মেয়ে যারা পড়াশোনা করছে তারা কিন্তু যে কি শিখবে সেটা মানে এখন পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট হয় কিন্তু হবে, হলে যা হবে সেটা আপনারা যারা পরবর্তী জেনারেশন আসবে আমাদের ছেলেমেয়েরা তারা কিন্তু বুঝতে পারবে যে কোথায় গিয়ে আমাদের সমাজ হবে। এর আগে যেমন ছিল শুধু কাজ করতো তবু খাওয়া যুক্ত না, আবার কিন্তু সেই জায়গায় চলে আসতেছে কাজ করবে কিন্তু আমাদের তবু পেটে ভাত হবে না। আগে ছিল 8 ঘন্টা যেমন, এখন 12 ঘন্টা করবে শ্রমিককে, সে আইনও প্রায় পাকা হয়ে গেছে। যার জন্য সবকিছুতেই আমাদের কি করা আছে যে সরকারি যে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরগুলো সেগুলো ঠিক রেখে আর যেগুলো চাকরি বাকরির ব্যাপার আছে সেগুলো বেসরকারি গ্রহণ করার দিকে চেষ্টা হচ্ছে বা হয়ে গেছে অলরেডি কতগুলো,
যাতে চাকরি হলে রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা আমাদের, কারণ আমাদের সংখ্যা 85% হলে কি হবে, আমাদের লোকেরা শিক্ষিত হলে তবেই সেই জায়গায় যেতে পারে। আর যত আছে সব কিন্তু আমাদের শিক্ষার আলোটা সবার কাছে পৌঁছয়নি। আর এই শিক্ষার আলো না পৌঁছলে আমরা জানতে পারবো না। আমাদের সমাজের লোকেরা বই পুস্তক লিখে যায় না, ফলে তারা যা লিখে গেছে সেটাই কিন্তু আমাদের পড়তে হচ্ছে। ফলে আমাদের সমাজে যে আমাদের যে জাতি রাজা নেই সেই জাতি তাজা নয়, ফলে আমাদের রাজা ছিল কিনা আমরা নিজেরাই জানতে পারছি না, কারণ আমাদের পড়ানো হয় না। শুধু বিদ্যাসাগরের জীবনী আর বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়াচ্ছে, তারা যে আমাদের সমাজে কি করেছিল ক্ষতি আর কি অপকার সেটা তো আমরা জানতে পারছি না, কারণ আমাদের লোকেরা তো লেখেনি, লিখেছে তারা। সেই জন্যই এই ব্যাপারগুলো আমাদের শিক্ষার যে আকৃতি, যেমন এখানে একটা সরকারি স্কুল হওয়ার কথা ছিল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দিক থেকে আসার কথা ছিল, এসসি এসটি এবারে যে সরকারি আবাসিক হবে, কিন্তু সেটা হয়নি, যে কোনো কারণে হোক হয়নি। তা আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখতে পারতো, হয়নি। উসমানিতে একটা হোস্টেল হয়েছিল, সেটা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকলো, তারপর হোস্টেলের ছাদ তুলে পড়ে যাচ্ছে। তাহলে কারা করলো? যারা করেছে, মানে যাতে আমাদের লোকেরা সেগুলো থাকতে না পারে বা আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে লেখাপড়া করার জন্য যে হোস্টেলে সরকারি পয়সায় সেটা না পড়ে। আর শিক্ষা এখন যদি বলা যায় মিড ডে মিল চলছে, এখন সমাজে মিড ডে মিলের একটা সময় ছিল আমরা দেখেছি 1 টাকাতে 3 দিন কাজ করতে হতো, সে 4 দিত। আমাদের কাজ করে কিন্তু পেটে ভাত হতো না, এরকম অবস্থা ছিল। কিন্তু এখন আর কিন্তু খাবার কাজগুলো অভাব নেই, মোটামুটি খাদ্যের প্রায় স্বাধীনভাবে আমরা সবাই আমাদের যেগুলো দরকার বেসিক আর্থিক এবং লেখাপড়া, সেটা কিন্তু আমাদেরকে কিভাবে শেষ করা হয়, যার জন্য বিভিন্ন নেতারা, যেমন আগে প্রমোদার এখানে বলতেন যে চাষার বেটা আবার ইংরেজি শিখে কি করবে, অর্থাৎ তখন থেকে কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম চালু হয়ে গেল। আমি এক মন্ত্রী এখানে ছিল, তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনারাই বলছেন যে চাষার বেটা লেখাপড়া শিখে ইংরেজি শিখে কি করবে, তার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কেন বলবেন, কেজি ভালো ভালো করলো। আবার এখানে মন্ত্রী তার ছেলে মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে পাঠালো, ভাই বললাম আপনার তাহলে ছেলে মেয়ে কেন আপনারা ওই ব্যাঙ্গালোরে পাঠালেন, এটা কেমন কথা হলো? আমাদেরকে এসে বলছেন যে ইংলিশ দরকার নেই, আর আপনার ছেলে মেয়েকে এখানে না পড়ে পাঠালেন ব্যাঙ্গালোর, তাহলে সেটা যে আমার বিচার দিতে হবে। আর কি হলো যে কৃষকের ছেলে মেয়ে, কারা কৃষক? 85% আমাদের, তো আমাদের ছেলে মেয়েদের ইংরেজি পড়া দরকার নেই। প্রবর্তনের মতো লোক বলেছিল, অভিষেকের মতো লোক, সেটা শিক্ষামন্ত্রী তখন উনি বললেন যে উচ্চ শিক্ষা সবার জন্য না, অর্থাৎ সেখানে বেসরকারি করা হোক, ক্যাপিটেশন ফি নেওয়া হোক, অর্থাৎ একটা আইএস হতে 2 কোটি টাকা লাগবে, তাহলে যেখানে সরকারি দিক থেকে আমাদের ট্যাক্সে সবার বেতন হবে, সরকারি উন্নতি হবে, অর্থাৎ আমাদের লোকেরা পিছিয়ে পড়া, তারা কিন্তু সেই সুযোগটা দেওয়া হবে না সরকারি দিক থেকে, সেভাবে পরিকল্পনা। এটাও আমাদের লোকগুলোকে যাতে সমাজের প্রথম সাহিত্য বা শিক্ষা দীক্ষার উন্নতি স্তরে যেতে না পারে, তার একটা পরিকল্পনা সরকারি দিক থেকে। আর এই যে মিড ডে মিলটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে মিড ডে মিল কি হলো খাওয়ার জন্য। এখন যারা আমাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করে আমরা হাই স্কুল প্রাইমারিতে চাকরি করি, তারা এই ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন, এবং যারা আমাদের সমাজের ওই শ্রেণী থেকে আসছেন, ওই ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করেন, তারা কিন্তু ভেবে দেখেন না মিড ডে মিলে শুধু খাওয়ানোর জন্য অনেক সময় আগে তো পাঠাবো, এখন একটু অনেকটা কমে গেছে, কিন্তু ছেলে মেয়ে কিন্তু চাকরির ব্যাপারটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, সবই বেসরকারিকরণ হচ্ছে। ফলে গেছে চাকরির দিকে না এসে সব চলেছে গুজরাট, কেরালা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদিতে কি করার জন্য, লেবার ডিউটি করার জন্য। ওখান থেকে এসে হয়তো যদি 1 লাখ টাকা নিয়ে আসে, দেখা গেল মোটরসাইকেল নিয়েছে 75,000 টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের, তাহলে মিড ডে মিলে গিয়েছে স্কুলে কিন্তু লেখাপড়া। আমাদের একটা প্রাইমারি স্কুলে তো 2 জন টিচার, মিড ডে মিলের জন্য একজনকে প্রায় থাকতে হয় ব্যস্ত। তাহলে লেখাপড়া কি করে হবে? 4টা শ্রেণী আছে, 4টা না 5টা, একটা আপার বলছি 1, 2, 3, 4 ক্লাসে প্রি প্রাইমারি একটা ক্লাস আছে, যেটা বড় 1 বলা হয়। তাহলে 5টা ক্লাস, আমি 4টাও যদি ধরে নিই, তাহলে একটা টিচার বা 2টা টিচার 4টে ক্লাস কি করে হবে? বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান আছে। অর্থাৎ অফিস থেকে সবসময় জন্য তাহলে দেয় মিড ডে মিল হচ্ছে কিনা। আমি হাই স্কুলে করি, আমাদের আমি কিন্তু টিআইসি ছিলাম, তখন দেখেছি আমরা ডিআই দিয়ে বা বিভিন্ন অফিসে যখন যেতাম বলতাম যে আপনারা ইন্সপেকশনে আসছেন না, আর যদি আসেন তাহলে কিন্তু কি করেন, শুধু মিড ডে মিলে ঠিক মতো করা হচ্ছে কিনা
বা কাগজপত্র দেওয়া হলো কিনা, এইটুকু লেখাপড়া হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু কোনোরকম নোট বা সেরকম আলোচনা কিন্তু করা হয় না। বা ক্লাসে ক্লাসে আগে যেমন আমরা যখন পড়তাম তখন ডিআই অফিস থেকে আসবে ক্লাসে এসে তারা কিন্তু ক্লাসে ঢুকতেন, দেখতেন যে মাস্টার পড়াচ্ছেন। আমিও যখন প্রথম চাকরি করি তখন আমিও দেখেছি যে আমি ক্লাসে এসে তারা দেখছেন পড়াচ্ছি কিনা। এখন কিন্তু আর সেই কথা শুধু মিড ডে মিল হলো কিনা সেটা দেখে লেখাপড়া কিন্তু এবং আনঅফিসিয়ালি তারা বলতেন যে আপনারা মিড ডে মিলটা ঠিক মতো চালাবেন, লেখাপড়া তার মধ্যে যা হবে যথেষ্ট। তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো বা এই বার্তাগুলো আমাদের গার্জেনদের কানে কিন্তু সবসময় যায় না। কারণ এই জন্য এখন বলেছে গান ভরা যে গার্জেন মিটিং করতে সব বছরে দুটো, কিন্তু এটাও দেখেছি মিটিং বহুবার আমি যখন পিএইচসি ছিলাম আমিও নিজে দেখেছি, কিন্তু আসতেন না আমাদের গার্জেনরা, কিন্তু কাজে ব্যস্ত। ফলে কিন্তু তাদের দিক থেকে যে একটা ফিডব্যাক ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে কিনা সেটা কিন্তু আমরা পেতাম না। আর কি হলো যে পাস ফেলটা তুলে দেওয়ার ফলে সর্বনাশের নাম দেবে। যেমন এবার এই যে করোনা ভাইরাসের ব্যাপার নিয়ে এটাও তো একটা আন্তর্জাতিক চক্র দেওয়া, তো এখানে সবকিছু কিন্তু খুলে গেল, মিটিং হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে, হাজার হাজার লাখ লাখ লোক জমায়েত হচ্ছে, সেখানে করোনা কিছু হচ্ছে না। শুধু স্কুলের ব্যাপারে বলে ছেলে মেয়েদের পড়ানো যাবে না, যে তার দায়ী কে নেবে। তার মানে কি হলো এই একটা বছর বলে দিয়েছে আমার যত ডিটেনশন করা হোক, অর্থাৎ ফেল করা হোক, পাশের ব্যাপারটা কিছু করবো না। মার্চের 16 তারিখে শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রথম একটা থেকে দুটো সপ্তাহ হয়নি, একটা সপ্তাহ পড়াশোনা হয়েছে। তাহলে জানুয়ারিতে ভর্তি দিতে যায়, ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে, মার্চের শেষ হয়ে গেল। তাহলে কি হলো যে মেয়েটা 6 বা 7 ছিল, 9 ছিল, তারা কিন্তু একটা পড়াও করলো না। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে সব পাস করে দিই, তারা কি শিখবে? বাংলাটা না ইতিহাসটা না পড়ে এলো, ইংরেজি এবং অঙ্ক বা এই যে গ্রামার যেগুলো আছে সেগুলো বলে দিচ্ছে যে পাস করে দিই। অর্থাৎ আমাদের গার্জেনরা যারা পড়াশোনা তাদের জানে না, তারা তো ভাবছে যে আমার মেয়েটা বা ছেলেটা পাস করে যাবে, গ্রেড 9 নিল, কিন্তু সে যে কিছুই শিখলো না, না করে চলে গেল, সেটা কিন্তু একবার ভাবছে না। তাহলে এই ব্যাপারগুলো আমাদের সমাজে এখনো কিন্তু কোনো নিজেরা আন্দোলন করে নাই, বা আন্দোলন করে আমাদের লোকেরা সবসময় আসতে চায় না। শুধু ঠান্ডা নিচে হলে সবাই যায়, আমাদের লোকগুলোতেই দল ফাঁড়ি হয়, কিন্তু সেটা আমাদের মনে থাকে না। যে লোকগুলো যাচ্ছে তারাই আমাদের সমাজের সংগঠন যদি ডাকা হয় তারা কিন্তু আসে না। এখানে আসলে অন্তত যেহেতু চা পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু চা পাওয়ার যেখানে সেখানে তারা একবার ভোটের জন্য টাকা দিয়ে দেয়, শুধু 5 বছর আরাম করে চায়। আবার যখন কাজ করার জন্য যায় তখন টাকা লাগবে, কারণ টাকা না দিলে কাজ হয় না। তাহলে এই ব্যাপারগুলো আমাদের সমাজের লোকগুলো কিন্তু দেখে না বা বুঝতে চায় না। ফলে শিক্ষায় চেতনা আনে, চেতনা মানে বিপ্লব, বিপ্লব মানে মুক্তি। তা আমাদের শিক্ষায় যদি শিক্ষিত না হতে পারে তাহলে কি করে হবে? সেই জন্য কিন্তু আমাদের সমাজের লোকেরা সবসময় কিন্তু সবকিছু জানতে পারে না, করতে পারে না বা বোঝার চেষ্টা করে না। আর যে লোকগুলো একটা সময় পড়াশোনা করে এসছে, যেমন ইরাম সাহেব বা আমাদের মঙ্গলবাবু, এখন কিন্তু আর পড়াশোনার দিকে সেরকম ছেলেপেলে উঠে আসতেছে না। না আসার জন্য কি হবেন, সব লেবারকে করতে চলে যাচ্ছে, শুধু ভোটের জন্য সব থাকছে। তাহলে এই ব্যাপারটাও কিন্তু এখনকার যারা শিক্ষিত ছেলে মেয়ে তাদেরও যদি আন্দোলনে এগিয়ে আসে বা এই যে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হোক বা সমাজে যে কোনো সামাজিক সংগঠন যদি এগিয়ে আসে, তাহলে সমাজের সংগঠন যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা কিন্তু দাবি আদায় করতে পারবো ওই রাজনীতি নেতাদের কাছেও, যে আমাদের পাড়ায় স্কুল হয়নি, আমাদের রাস্তা হয়নি, আমরা সবাই সংসদে যদি বলি আমাদের যদি দেওয়া হয় এগুলো, তাহলে আমরা ভোটের সময় আপনাদের দলে যেতে পারি বা ভোটটা দিতে পারবো, দিব কিনা এটা চিন্তা ভাবনা করবো। কিন্তু সামাজিক আমাদের যেহেতু সংগঠন নাই, ফলে আমরা ওরা যা বলে ঠিক সেই রকম। আগে যখন হারিয়ে টাড়িয়ে দিয়ে ভোট দিত, এখন সেটা কমে গেছে, আমাদের টাকা দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে যদি 6টা ভোটার থাকে, না গেল 6,000 টাকা দিয়ে চলে গেল। কিন্তু একবার আমরা ভাবলাম না যে 6,000 টাকা 5 বছর পর আর কিন্তু ওরা আসবে না 5 বছরের মধ্যে। আর যদি আমরা যে তখন বলবে টাকা দিয়ে ভোট দিয়েছি, তাহলে এখন তোমার টাকা লাগবে, টাকা হবে না। এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো আমাদের কিন্তু সমাজে লোকেদের ভাবার সময় এসে, কিন্তু এই ভাবতে ভাবতে 73 বছর পার হয়ে গেল, এখনো যদি আমাদের যে ছেলেপেলেরা বা আমাদের গার্জেনরা যদি সজাগ না হয়, বিশেষ করে লেখাপড়ার দিক থেকে যদি না দেখা হয়, তাহলে কিন্তু আমরা কিছু জানতে পারবো না। চাকরির জন্য আমরা কিন্তু দাবি করতে পারবো না, কারণ এই পাস ফেল নাই। অর্থাৎ বলে দিচ্ছে যে গেলে স্কুলে গেলে, এবং আমরা দেখেছি এবার আমরা একটা ছেলেকে ভর্তি করার 7-এ
অফিস থেকে বলে দিল না ওর বয়স হয়ে গেছে এইটি ভর্তি করাতে হবে। ভাবুন এবার, এমনি তো সেভেনে পড়া হয়নি, পড়ে নেই, স্কুলে ভর্তি হতে আসছে, সেভেনটাও জানা নেই, কেউ বলে এইটি ভর্তি করাতে হবে। কি শিখবে? আবার পাশ করে দিতে হবে, 9-এ তুলে দিতে হবে। তাহলে আমাদের মেরুদণ্ড কিন্তু শিক্ষা যদি না থাকে আমরা কিছু জানতে পারবো না, প্রতিবাদ করতে পারবো না। যার জন্য আমাদের ছেলেরা আমাদের কিছু বলে, মাস্টার তুমি যে কালকে বলেছিলে ওটা তো হয়নি, তুমি আর আপনি যে কি বলতে হবে এই সম্পর্কেও আমাদের সমাজের অবস্থাকে জানতে পারছেন, শিখতে পারছেন, শিক্ষা না থাকার জন্য। ফলে আমাদের কিন্তু আবার মূর্খের দলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা যদি আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা না বোঝে তাহলে কিন্তু আমাদের সম্পর্কে আসবে। কারণ লেখাপড়া না থাকলে আমরা যেমন কোনো জায়গায় প্রতিবাদ করতে পারবো না, চাকরির জন্য কিন্তু আমরা জানতে পারবো। ঠিক আছে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। যারা বক্তা আমাদের আছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। তো আমাদের এমনিতে সময় কম, আমাদের প্রধান বক্তা এখানে আমাদের মাননীয় জেনারেল স্যার এসছেন। উনি আমাদেরকে কিন্তু বারবার আসতে পারবেন না, উনি আমাদেরকে যে মূল্যবান কথাগুলো বলতে যাচ্ছেন ওনাকে বেশি সময় দেব। আর আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন যদি থাকে সেগুলোকে অফ করে রাখবেন, যাতে ওনার বক্তব্যগুলো আমরা ভালোভাবে শুনতে পারি এবং মনের মধ্যে গেঁথে রেখে ভবিষ্যৎ যে সমাজটা আমাদের দুরন্ত সমাজটা সেটাকে যাতে রুখে দাঁড়াতে পারি তার জন্য এরা থাকে সে বলার জন্য অনুরোধ করছি। साथियों, मोबाइल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको वाइब्रेशन मोड पर रख सकते हैं आधा पौन घंटे के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिनंदन। इस कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जिन जिन मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों ने इस मूल निवासी बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, उन सभी मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों को मेरा अभिवादन। साथियों, आज देश की हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। दुश्मन प्रतिदिन षड्यंत्र कर रहा है हमारे विरोध में, लेकिन हमारा समाज उतना जागरूक नहीं है। दुश्मन के षड्यंत्र को लेकर हमारा समाज उतना गंभीर नहीं है। जो हजारों सालों से राज तो कर रहा है, लेकिन इस तथाकथित आजादी में जो परिस्थितियां हमारे सामने निर्माण की, उस बात को लेकर हम लोग उतने गंभीर नहीं हैं। हमें बताया गया 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अगर देश आजाद होता तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो गया होता। अगर आज हमारी हजारों समस्याएं अगर है तो इसका मतलब ये देश आजाद नहीं हुआ, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ। कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इस देश की व्यवस्था देकर वो लोग चले गए। ये देश अभी भी आजाद नहीं है।
क्योंकि 15 अगस्त 1947 में जो एग्रीमेंट हुआ वो ट्रांसफर ऑफ पावर का बिल है, सत्ता के हस्तांतरण का बिल है। अगर ट्रांसफर ऑफ पावर दिया इसका मतलब यह आजादी नहीं है। अगर आजादी होती तो कुछ लोग अमीर है और बहुसंख्य लोग गरीब है। मुट्ठी भर लोगों की समस्या नहीं है और बहुसंख्य लोगों की हजारों समस्याएं हैं। कुछ लोगों को खाने के लिए बहुत सारा मिल रहा है और कुछ लोगों को 2 समय का भी खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी आजादी नहीं है। साथियों, अंग्रेज काल में जो समस्याएं नहीं थी, इस तथाकथित आजाद भारत में वो समस्याएं निर्माण हुई। अंग्रेज काल में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। आज आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की और आज भी किसान लड़ाई लड़ रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते करीबन 25-30 किसान मर गए। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है। गुलाम भारत में नक्सलवाद नाम की समस्या नहीं थी और आज आजाद भारत में आदिवासियों को नक्सलवादी करके मारा जा रहा है। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था और गुलाम भारत में आतंकवाद नाम की समस्या नहीं थी। आजाद भारत में आतंकवाद निर्माण हुआ। जो परिस्थितियां आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर परिस्थिति है। अगर ये हजारों समस्या अगर हमारी निर्माण हुई तो इससे ये बात साबित होती है कि हम लोग आजाद लोग नहीं, गुलाम लोग हैं। क्योंकि इटली के एंटोनी ग्राम्सी कहते हैं कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर आज हमारी अगर हजारों समस्या है, इसका मतलब हम लोग गुलाम लोग हैं, लेकिन गुलामी का रियलाइजेशन, गुलामी का एहसास हमारे लोगों को है ही नहीं। और ये एहसास ना होने की वजह से भारत में कोई विद्रोह नहीं हो रहा है। अगर आज अंग्रेज होते और हजारों हमारी समस्या होती तो हम कह सकते थे कि अंग्रेजों ने वर्तमान भारत में ये समस्याएं निर्माण की, लेकिन आज अंग्रेज नहीं है और हजारों समस्याएं जो अंग्रेज काल में नहीं थी तो आज पैदा हो गई। साथियों, भारत में 2 प्रकार की लड़ाई चल रही है। एक है धार्मिक ध्रुवीकरण, जिसे रिलीजियस पोलराइजेशन कहते हैं, और दूसरा है सोशल पोलराइजेशन, जिसे सामाजिक ध्रुवीकरण कहते हैं। 2 प्रकार की लड़ाई भारत में चल रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या होगा? तो हिंदुत्व मजबूत होगा और हिंदुत्व से ब्राह्मण मजबूत होगा, क्योंकि हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण नहीं। अगर ब्राह्मण मजबूत होगा तो हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। यह लड़ाई इस देश में चल रही है। 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई चला रहा है। हमें इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़नी होगी और सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई इस देश में सिर्फ बामसेप लड़ रहा है। आज 42 ईयर्स हो रहे बामसेप को। सामाजिक ध्रुवीकरण होगा तो क्या होगा? सामाजिक अगर ध्रुवीकरण होता है
तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की संचय शक्ति का निर्माण होगा। सामाजिक ध्रुवीकरण से संचय शक्ति का निर्माण होगा। उस संचय शक्ति का उपयोग और प्रयोग आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कर सकते हो, गुलामी से मुक्त होने के लिए कर सकते हो, राजनीतिक क्रांति के लिए कर सकते हो, सत्ता परिवर्तन के लिए कर सकते हो, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर सकते हो, धार्मिक परिवर्तन के लिए कर सकते हो। शक्ति का उपयोग आप सामाजिक क्रांति के लिए कर सकते हो। इसीलिए जिस दुश्मन ने हजारों समस्याएं हमारी निर्माण की, उनको चरित्र को बगैर जाने आप लोग उनके विरोध में लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिनके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो, उनके कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। विरोध में लड़ना चाहते हो, वो कितना मजबूत है, वो कितना कमजोर है, वो क्या क्या षड्यंत्र करता है। अगर ये चरित्र अगर हम लोग उनका नहीं जानेंगे तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। दुश्मन का चरित्र है कि वो ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों को गुलाम बना रहा है। उसका तरीका है कि वो संगठित तरीके से हमको गुलाम बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे गुलाम बनाकर रखा, उसी प्रकार से कन्याकुमारी के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। तरीका एक ही है। गुजरात के लोगों को जैसे गुलाम बनाकर रखा, वैसे ही बंगाल आसाम के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। तरीका एक ही है। वर्ण व्यवस्था पूरे भारत में है, जाति व्यवस्था पूरे भारत में है, स्त्री दासता पूरे भारत में है, उच्च नीचता पूरे भारत में है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन पूरे भारत में है, पुनर्वसन के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है पूरे भारत में। जो बातें आपको बताई जा रही, साथियों, इस 74 साल के तथाकथित आजादी में आदिवासियों की अभी तक 5वीं एवं 6वीं अनुसूची अमल में नहीं आई। लागू तो 26 जनवरी 1950 से है, अमल में नहीं आई। जिन आदिवासियों के 47 सांसद चुनकर जाते हैं और जिन आदिवासियों के 450 विधायक चुनकर जाते हैं, अभी तक लागू नहीं हुई। ये देशव्यापी समस्या है। आपके कोई जिला या राज्य या एक जाति की समस्या नहीं है। दुश्मन के कैरेक्टर को पहले समझो। लड़ाई लड़ना चाहते हो, नहीं तो गलत तरीके से काम करोगे तो समाज को और हजारों साल गुलामी में ढकेलोगे और इसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। काम नहीं करोगे चलेगा, लेकिन तरीका गलत नहीं होना चाहिए। काम नहीं करोगे चलेगा, जब तक समझ में नहीं आता तब तक नहीं करोगे चलेगा, लेकिन गलत तरीके से काम करोगे तो खुद तो गुलामी में जाओगे ही, लेकिन अपने समाज को हजारों साल गुलामी में जाने का बंदोबस्त करोगे, आने वाले जनरेशन को बचा नहीं पाओगे। तरीका गलत नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन पूरे देश में समाप्त हुआ, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में आया। समस्या आपके जिला की या किसी जाति की समस्या नहीं है, ध्यान रखो। बहुत खास बात बता रहा हूं और ये बार बार बताने के लिए भी नहीं आने वाला हूं, क्योंकि उतना समय नहीं है मेरे पास। समस्या देशव्यापी है, क्योंकि दुश्मन का जो चरित्र है कि वो संगठित तरीके से हमको गुलाम बना रहा है। उसका तरीका है संगठित तरीका। अगर हम लोग आइसोलेशन में काम करेंगे, आइसोलेट होकर काम करेंगे, तो समस्या का समाधान कर पाओगे? हैं? समस्या का समाधान कर पाओगे? अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो समस्या का समाधान होगा? होगा समाधान? बिल्कुल नहीं होगा। 100% नहीं, 200% नहीं होगा। क्योंकि मैं भी आदिवासी हूं, 15 साल से काम कर रहा हूं, हर चीज जानता हूं, और जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से उनको मालूम है हमारा काम करने का तरीका। साथियों,
आज हमारे समाज में लाखों संगठन निर्माण हुए। जाति के नाम पर संगठन बनाए, जिला के नाम पर जिला में संगठन बनाए, राज्य में संगठन बनाए, महापुरुषों के नाम पर संगठन बनाए। एरिया के नाम पर संगठन बनाए। बस अभी मां बाप के नाम पर संगठन बनाना बाकी है। जो मर गए होंगे उनके नाम पर संगठन बनाना बाकी है, बाकी सब जगह पर संगठन बनाए, लाखों संगठन। और इन लाखों संगठनों को अगर सवाल पूछो कि आपका उद्देश्य क्या है, तो लाखों संगठन कहते हैं कि समाज का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना, समस्या का समाधान करना, समस्या के लिए लड़ाई लड़ना, यह हमारा उद्देश्य है। अगर लाखों संगठनों का अगर यह उद्देश्य है, तो तथाकथित आजादी में हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? नंबर 1। अगर लाखों संगठन हमारे समाज में कार्यरत है और आज हमारी अगर हजारों समस्याएं निर्माण हुई और हमारे किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है, तो लाखों संगठन क्या कर रहे हैं? जो जवाब देते हैं जन कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना, समाज की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ना। हमारे समाज के लोगों ने 2 तरीके डेवलप किए संगठन बनाने के लिए। पहला तरीका, समस्याओं को आधार बनाकर संगठन बनाया। दुश्मन समस्याएं पैदा कर रहा है, हमारे लोग उस समस्याओं के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी शरीर हमारा, ये ब्रेन हमारा, लेकिन हमने काम कौन सा करना चाहिए वो निर्धारित कर रहे हैं। मामला समझ में आ रहा है? फिर एजुकेशन का कोई मतलब है? ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, 10वीं हो, 12वीं हो, दुश्मन निर्धारित कर रहा है कि आपने काम कौन सा करना चाहिए। आपने काम कौन सा करना चाहिए निर्धारित करने में दुश्मन का फायदा है, आपका क्या फायदा है? आपका क्या फायदा है? साथियों, समस्याओं को आधार बनाकर हमारे लोगों ने संगठन बनाए। एक समस्या का एक संगठन। बेरोजगारी समस्या है, बन गया संगठन। नक्सलवाद समस्या है, बन गया संगठन। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 लागू नहीं हुआ, बन गया संगठन। भूखमरी समस्या है, बन गया संगठन। घर जलाए गए, बन गया संगठन। पुतला टूट गया, बन गया संगठन। रिजर्वेशन समाप्त हो रहे, बन गया संगठन। नौकरी नहीं मिल रही, संगठन बन गया। पेंशन लटक गई, संगठन बन गया। किसी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, संगठन तुरंत बन गया। एक समस्या का एक संगठन, 1000वीं समस्या का 1000वां संगठन, ऐसे लाखों समस्या निर्माण हुई, लाखों संगठन निर्माण हुए। जो लोग समस्याओं के ऊपर, समस्याओं को आधार बनाकर संगठन बनाते हैं, वो समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्याएं बढ़ाते हैं। इस वजह से क्या हुआ? एक साइड में संगठन बढ़ रहे, दूसरी साइड में समस्याएं बढ़ रही। इस देश में हजारों समस्याओं का संचय बनते जा रहा है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अगर हजारों समस्या का समाधान चाहते हो तो हजारों समस्याओं की लिस्ट बनानी पड़ेगी और नंबर 1 की समस्या को हाथ में लेनी पड़ेगी। आदमी जब पैदा होता है तो अक्ल आने के लिए, समझ आने के लिए 25 साल लग जाते हैं। लगते हैं या नहीं? आदमी जब पैदा होता है, अक्ल आने के लिए, समझ आने के लिए 25 साल लग जाते हैं। और मरता कब है? 65-70 साल में। 30-35 साल समाज में काम करता है, फिर उसकी उम्र 65-70 साल की हो जाती है, मर जाता है। फिर कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर समझ आने के लिए 25 साल लगते हैं, फिर 30-35 साल काम करता है, फिर मर जाता है, फिर और कोई महापुरुष पैदा होता है, समझ आने के लिए 25 साल लगते हैं। जो बातें बताई जा रही, हजारों समस्या का समाधान चाहते हो तो हजारों समस्या की लिस्ट बनानी पड़ेगी। दूसरा, ये जो लाखों संगठन हमारे समाज में बने, कभी इन लोगों ने सोचा समाज का टाइम डिवाइड हो चुका है, समाज का टैलेंट डिवाइड हो चुका है,
समाज का मनी डिवाइड हो चुका है लाखों संगठनों में, जिस वजह से आप राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पा रहे, जिस वजह से राष्ट्रव्यापी साधनों का निर्माण नहीं हो रहा है। दुश्मन कितना मजबूत है उसकी औकात देखकर, उसके चरित्र को देखकर हमें अपनी तैयारी करनी होगी। काम करना है करके ऐसे ही काम नहीं करना है, नींद से उठे और आ गए काम करने के लिए, ऐसे ही नहीं। दुश्मन इतना मजबूत है कि पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। विधेयपालिका उसके नियंत्रण में, कार्यपालिका उसके नियंत्रण में, न्यायपालिका उसके नियंत्रण में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके नियंत्रण में, प्रिंट मीडिया उसके नियंत्रण में, ट्रेडिशनल मीडिया उसके नियंत्रण में, वोकल मीडिया उसके नियंत्रण में, मिलिट्री उसके नियंत्रण में, पैरामिलिट्री नियंत्रण में, बंदूक नियंत्रण में, गोली नियंत्रण में, डंडा नियंत्रण में। डंडा लठ इतना मजबूत है। यह पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। अगर पत्थर को अपना सर टकराओगे तो नुकसान किसका होगा? पत्थर का होगा या सिर का होगा? किसका होगा नुकसान? सिर का होगा। अगर पत्थर से टकराना चाहते हो तो पत्थर सरी का ताकत पहले खुद में मजबूत करनी होगी, तब जाकर पत्थर से टकराना होगा। यह व्यवस्था जिन लोगों के नियंत्रण में है वो मजबूत लोग हैं और उनके विरोध में हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और लड़ाई लड़ने के लिए हमने संगठन अपने एरिया का बनाया है, हमने जाति का संगठन बनाया, फिर हम लोग समाज में जाते, फिर लोगों को तैयार करते। अब जाति ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। नाम होता है अखिल भारतीय संगठन का और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका जाति में काम करता है और समाज को भावनिक तैयार करता है कि पहले हमें अपने जाति को तैयार करना होगा, जोड़ना होगा, तब बामसेप से जुड़ना होगा। ये स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है संगठन बनाने की। जैसे कि बामसेप 42 ईयर्स से काम कर रहा है, कोई मैकेनिज्म का डेवलप हम लोग कर ही नहीं रहे। भावनिक लोगों को तैयार करते हैं, जातिगत मानसिकता से लोगों को तैयार करते हैं। जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। मैं जितनी भी बातें यहां पर कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों से आप लोग सहमत हो। पहले सुनो, चिंतन करो, सही लगे तो आओ, नहीं तो जरूरत नहीं। बहुत खास बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, जहां लात मारूंगा वही पानी निकालूंगा। और 6 महीना रुकने वाला हूं बंगाल में, और मैंने खुद के ही 200 कार्यक्रम डिजाइन किए, 200 कार्यक्रम लूंगा बंगाल में। जहां विचारधारा नहीं पहुंची है वहां जाऊंगा, लेकिन गलत तरीके से किसी को तैयार भी नहीं करूंगा और कोई गलत तरीके से काम कर रहा है उसका समर्थन भी नहीं करूंगा, चाहे 10 लोग मेरे साथ आए या ना आए। क्योंकि आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, आंदोलन कमिटमेंट के आधार पर चलता है। आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, कमिटमेंट चाहिए। आंदोलन के लिए संख्या की जरूरत है, बस चलाने के लिए संख्या की जरूरत नहीं। कमिटमेंट चाहिए, त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि लाखों संगठन है, लाखों संगठन होने के बावजूद भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आदिवासियों के 42 सांसद होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, 450 विधायक होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के भी करीबन 77 सांसद होने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और करीबन 650 विधायक उनके भी है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ओबीसी के करीबन 200 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जानवरों की गिनती कर रहे, 200 होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। जिनके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो उनकी व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अगर जब लाखों संगठन इस समाज में कार्यरत है तो हमको बामसेप बनाने की क्या जरूरत पड़ी?
अगर इतनी खुजली थी समाज का कार्य करने का तो लाखों संगठनों में से किसी एक संगठन में शामिल हो जाते थे। लेकिन बामसेप क्यों बनाई हमने? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद क्यों बनाया? राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ क्यों बनाया? भारत मुक्ति मोर्चा क्यों बनाया? साथियों, जो वर्तमान की जो हजारों समस्या है, ये हजारों समस्या कारण नहीं है, परिणाम है। बेरोजगारी परिणाम है, भुखमरी परिणाम है, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है परिणाम है, नौकरी समाप्त हो रही परिणाम है। क्यों हो रही? कारण क्यों हो रही? बट भाई ये कारण है। तो हजारों समस्या परिणाम है, हर परिणाम के पीछे कारण होता है। हमारे लोग परिणाम की चर्चा करते हैं, परिणाम के ऊपर काम करते हैं। साथियों, लाखों संगठन होने के बावजूद भी हम लोगों ने बामसेप क्यों बनाई, इस संदर्भ में एक उदाहरण आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मान लीजिए गटर है और वो ओवरफ्लो हुआ है। गटर टैंक गंदा पानी वाली, जैसे लैट्रिन की टैंक होती है। एक गटर है, ओवरफ्लो हुआ है और गंदा पानी बाहर आया है, तो वो आपके घर की तरफ आएगा। तो आप सोचेंगे वो मेरे घर में नहीं घुसना चाहिए, इसलिए मट्टी का बांध बांधेंगे पानी को रोकने के लिए। आप मिट्टी का बांध बांधो कि सीमेंट का बांधो, पानी में एक गुण होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है, फिर पानी दूसरे की तरफ जाएगा, दूसरा भी मिट्टी का बांध बांधेगा, फिर पानी तीसरे की तरफ जाएगा, तीसरा भी मिट्टी का बांध बांधेगा। समस्या कहां पर है? कहां पर है समस्या? कहां पर है? आप ही बताओ, कहां पर समस्या है? टैंक में। समस्या कहां पर है? गटार में। जहां से गटर ओवरफ्लो हुआ है वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा है, जो गंदा पानी बाहर आ रहा है बंदोबस्त उधर शुरू है। मामला समझ में आ रहा है? मुझे बांग्ला नहीं आती, अभी मुझे 6 महीने का ऑर्डर मिला है, 6 साल का मिला तो जरूर बोलना भी सीख लूंगा। लेकिन जो भी हिंदी बोल रहा हूं वो समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। समस्या गटर में है और हमारे लोग समाधान मिट्टी का बांध बांध कर रहे। कैसे होगा समस्या का समाधान? कैसे होगा बताइए, कैसे होगा समाधान? बामसेप जो है वो मिट्टी का बांध बांधना नहीं चाहता, बामसेप गटर को बदलना चाहता है। बामसेप मिट्टी का बांध बांधना नहीं चाहता, गटर को बदलना चाहता है। अगर गटर को बदल दिया जाए तो गंदा पानी बाहर आना बंद हो सकता है। ये गंदा पानी क्या है? गरीबी, लाचारी, भूखमरी, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, नौकरी समाप्त हो रही है, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, आदिवासियों की समस्या। ये गंदा पानी जो गटर से आ रहा है इसको रोका जा सकता है अगर गटर को बदला जाए। इसलिए बामसेप और लाखों संगठनों में यह अंतर है कि हम लोग गटर को बदलना चाहते हैं। अब ये गटर क्या है? तो गटर है इस देश की सिस्टम, गटर है इस देश की व्यवस्था। भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक है विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम, दबे कुचले लोगों की व्यवस्था, शोषित पीड़ित लोगों की व्यवस्था, और दूसरा है बेनिफिशनरी ऑफ द सोशल सिस्टम, फायदेमंद लोगों की व्यवस्था, जिनको फायदा हो रहा है। ऐसी समस्या रखकर जिनको फायदा हो रहा है उनकी एक व्यवस्था है, और जो दबे कुचले हैं उनकी एक व्यवस्था है। भारत में समाज व्यवस्था और शासन व्यवस्था जिसको हम बदलना चाहते हैं। समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है जिसमें हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया, उसके बाद में जाति व्यवस्था लाई, 6743 जातियां बनाई। आदिवासियों में 800 साढ़े 800 जाति है, शेड्यूल कास्ट में 1700 जाति है,
ओबीसी में 3743 जाति है, और कुछ जातियां SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनमें कुछ जातियां चली गई। ऐसे भारत में 6743 जातियां। ये जाति किसने बनाई? तो ब्राह्मणों ने कहा जाति भगवान ने बनाई। तो मेरा ब्राह्मणों को सवाल है, अगर जाति भगवान ने बनाई तो फिर दुनिया में जाति क्यों नहीं है? अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? इंग्लैंड में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? इसका मतलब भगवान को कोई तकलीफ थी क्या उधर पैदा होने के लिए, जो भारत में जाति बनाई? दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है। तो ये ब्राह्मणों का झूठ पकड़ा गया। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कर्म से जाति बनी। कर्म का मतलब जो काम करते हैं, जैसे चमड़े का जो काम करते हैं उसको चमार कहा गया। जो कपड़े सिलाने का काम करता है उसको दर्जी कहा गया। जो कपड़े धोने का काम करता है उसको धोबी कहा गया। जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुंभार या प्रजापति कहा गया। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके में पानी पीने वाले लोग हैं, लेकिन कुंभार या प्रजापति नाम की जाति अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में भी चमड़े के काम करने वाले लोग हैं, जूते चप्पल पहनने वाले लोग हैं, चमार नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं और पहनने वाले लोग हैं, दर्जी नाम की जाति नहीं। इसका मतलब जाति कर्म से नहीं बनी। फिर जाति बनाई किसने, यह जानना बहुत जरूरी है। फिर जाति काय में होती है? तो जाति जानवरों में होती है। ये घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरी, इसको एक ही नाम है जानवर, है या नहीं? जानवर ही कहते हैं ना, इंसान तो कहते नहीं। घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, ये है जानवर। और जिन ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको कहते हैं इंसान। जो जाति जानवरों में है वो जाति इंसानों में निर्माण कर दी। जानवरों में क्या जाति है? घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है या नहीं? कुत्ते के घर में कुत्ता पैदा होता है, बकरी के घर में बकरी पैदा होती है। ये इंसान। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रिय के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, अति शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है। इधर जाति नहीं है, जाति जानवरों में है। और ये जानवरों सरी का जाति इंसानों में निर्माण कर दी। ये जानवरों सरी का जाति इंसानों में निर्माण कर दी ताकि भविष्य में हम लोग एक ना हो सके। आज अगर हजारों सालों से अगर हम लोग गुलाम हैं तो उसका एक ही कारण है कि इस देश में ब्राह्मण दो षड्यंत्र करते आ रहा है। एक है विभाजन, जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और दूसरा है अज्ञानता, जिससे ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है, जिससे ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है, और विभाजन की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। बुद्धा के पहले 28 बुद्ध होकर गए, उनके कार्यकाल में जाति नहीं थी। बुद्धा के भी 10,000 साल पहले आदिवासियों के महान नेता पारिकुपार लिंगो, जिन्होंने गण व्यवस्था का निर्माण किया, उनके कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी, गण व्यवस्था थी। बुद्धा के क्रांति के बाद में जब मौर्य साम्राज्य इस देश में निर्माण हुआ, सम्राट अशोक के कार्यकाल में जाति नहीं थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ, और उस साम्राज्य में एक ब्राह्मण सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण। उसने छल कपट से बृहद्रथ की हत्या की और इस देश में जाति व्यवस्था लाई ताकि हम लोग भविष्य में एक ना हो सके। जानवर के आकार, प्रकार, स्वरूप से पहचानते हो या नहीं? आवाज से किस जाति का जानवर है पहचानते हो या नहीं? इंसान के आकार, प्रकार, आवाज से कोई बताएगा ये किस जाति का है? इतना ही नहीं, जानवर के टट्टी से समझ में आता है किस जाति के जानवर की टट्टी है। इंसान के टट्टी से कोई बताएगा?
ये नमोशूद्राय की है, राजवंशी की है, पोंड्रो की है, बागदी की है, संताल की है, मुंडा की है, सरदार कोई बताएगा? कोई जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, दुनिया में जानवर छूने लायक था लेकिन भारत में इंसान अछूत था। ऐसी व्यवस्था इस देश में निर्माण की। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में, ब्राह्मणों के नियंत्रण में, ब्राह्मण सबसे ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर यह वर्ण व्यवस्था अगर आदिवासी ने बनाई होती तो आदिवासी नीचे होता या सबसे ऊपर होता है? अगर यह वर्ण व्यवस्था नमोशूद्राय ने बनाई होती तो नमोशूद्राय नीचे रखते क्या अपने आप को? पैर के नीचे। बनाने वाला कभी भी अपने आप को ऊपर रखता है। ये व्यवस्था, इस प्रकार की विषमतावादी व्यवस्था, ये भगवान ने नहीं बनाई, कर्म से भी नहीं बनी। ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा और उच्च जाति और जातियों में क्रमिक असमानता निर्माण कर दी। हर जाति को लगता है उसके नीचे एक जाति है। नमोशूद्राय को लगता है उसके नीचे एक जाति है, राजवंशी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, पोंड्रो को लगता है उसके नीचे एक जाति है, बागदी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, बावरी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, संताल को लगता है उसके नीचे एक जाति है, मुंडा को लगता है उनके नीचे एक जाति है। सबको कह दिया भाई आपके नीचे है जाति है। लेकिन ब्राह्मण हमसे ऊपर है, ये किसी को ध्यान में ही नहीं आता। ये ध्यान में आता है कि हमारे नीचे कौन सी जाति है। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई, जिस गटर को बदलने की बात कर रहा हूं। दूसरी है शासन व्यवस्था। देश को चलाने के लिए 4 पिलर होते। एक है विधेय पालिका। विधेय पालिका में जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद चुनकर देते हो, वो विधेय पालिका में जाते हैं। ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। जब 15 अगस्त 1947 में जब ब्राह्मण भारत छोड़कर गए थे, तब जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, तब अंग्रेजों की संख्या 11.5 लाख थी। कितनी थी? 11.5 लाख। तो तब 35 करोड़ भारत की पॉपुलेशन थी। कितनी थी? 35 करोड़। तो तब बाकी के लोग ये सोच रहे होंगे ना, यार अंग्रेजों ने तो 150 साल राज किया, 11.5 लाख अंग्रेज कैसे जाएंगे छोड़कर? उस वक्त लोग सोच रहे होंगे ना, जो अभी के लोग सोचते हैं यार 3.5% ब्राह्मण कैसे भागेंगे, अभी सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। हमारे लोग जो है ना ज्यादा आगे का सोचते हैं। करना क्या है मालूम नहीं, आगे का। यार कैसे जाएंगे 3.5%? अरे भाई 11.5 लाख कैसे चले गए? तो फिर हम लोगों ने कहा ब्राह्मणों को यहां से भगाने के लिए थोड़ी ना आंदोलन चला रहे। अगर राजा हम बनेंगे तो राज करने के लिए प्रजा भी तो चाहिए है? आदिवासी के ऊपर राज करेगा, मजा आएगा? तो प्रजा भी तो चाहिए। और उनके साथ गैर बराबरवादी व्यवहार भी नहीं करेंगे, विषमतावादी व्यवहार भी नहीं करेंगे। 2 अधिकार देंगे। एक, जी उनकी जितनी संख्या है उतना प्रतिनिधित्व देंगे, और दूसरा कानून बनाएंगे कि शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार विदेशी व्यक्ति को नहीं होगा। और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। हमें क्या बताया? मुसलमान विदेशी है। मोगल विदेशी थे, बहुत सारे आदिवासी मुस्लिम बन गए। महाराष्ट्र में जाइए आप, तड़वी नाम की जो आदिवासी जाति है मुसलमान बन गए, तो वो विदेशी है क्या? बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन गए, वो विदेशी है क्या? धर्म एक डिसिप्लिन है, धर्म एक अनुशासन है, जीने का मार्ग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आदिवासी कोई भी धर्म स्वीकार सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका ट्राइबल स्टेटस खत्म होने वाला नहीं है। ध्यान रखो, क्योंकि धर्म के नाम पर संविधान में कोई अधिकार नहीं है। संविधान में अधिकार है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। कुछ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है साथियों। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई है। अभी हम देख रहे हैं देश को चलाने की यंत्रणा। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है।
एक है कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी, तीसरी है सीपीआई, चौथी है सीपीएम, पांचवी है तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस बनाई किसने? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, कुछ बंगाल के ब्राह्मण थे, कुछ महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, कांग्रेस बनाई। ब्राह्मणों की पार्टी, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% और उनकी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कांग्रेस। हम 7.5% आदिवासी है, कोई है राष्ट्रीय लेवल का दल? उस कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार कांग्रेस का विदर्भा का जनरल सेक्रेटरी था। विदर्भा महाराष्ट्र में है। हेडगेवार नाम का ब्राह्मण, उसने 1925 में आरएसएस बनाई और जब आरएसएस बनाई तो और 10 साल तक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था विदर्भा का, 1935 तक। इसका मतलब कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाने के लिए एक ब्राह्मण को रिलीज किया। जैसे बंगाल में कांग्रेस ने ही एक ब्राह्मण को रिलीज किया और टीएमसी बनी, क्योंकि सीपीआई से लोग परेशान हो चुके थे। 34 साल सीपीआई ने राज किया था, कांग्रेस ने 25 साल राज किया था। तो हमारे लोगों को तो नया चेहरा तो चाहिए, नया चेहरा चाहिए ना। तो कांग्रेस ने नया चेहरा दिया, ये लो। कांग्रेस ने रिलीज किया हेडगेवार को, आरएसएस बनाई। उस आरएसएस में आपके बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो आरएसएस चलाते थे, जिन्होंने इस बंगाल में हरिचांद जी और गुरुचांद जी ठाकुर जी का आंदोलन खत्म कर दिया। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ बनाया और उसी जनसंघ का नाम 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, ये दो ब्राह्मणों ने बीजेपी रखा, भारतीय जनता पार्टी। जो ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी है, उन्होंने पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने तो बनाना चाहिए था विदेशी जनता पार्टी, ब्राह्मण जनता पार्टी, बनाया भारतीय जनता पार्टी, जो भारत के है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें पढ़ लो ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, वो पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक्स होमिंद वेदास, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने 1875 में आर्य समाज बनाया था, वो ब्राह्मणों को कहता था, अरे ब्राह्मणों, हम हिंदू नहीं है, आर्य समाज के लोग हैं। राहुल संस्कृतायन एक पंडित आदमी है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का ब्राह्मण था। उसने किताब लिखी थी वोल्गा टू गंगा। वोल्गा रशिया में, गंगा भारत में। रशिया से ब्राह्मण भारत में कैसे आए, किताब लिखी और कहा ब्राह्मण विदेशी। लेकिन ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग में बिठाया मुसलमान विदेशी है, मुसलमान हमारा दुश्मन है, तो हमारे लोग मुसलमानों के विरोध में लड़ने लगे। अब मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने स्त्री दास्ता लाई? क्या मुसलमानों ने अछूत लाया? क्या मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? क्या मुसलमानों ने रिजर्वेशन समाप्त किया? क्या मुसलमानों ने प्राइवेटाइजेशन लाया? क्या मुसलमानों ने नौकरियां समाप्त की? क्या मुसलमानों ने 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं की है, अमल में नहीं की? मुसलमानों ने किया ये सब, तो मुसलमान कैसे दुश्मन? चलो एक उदाहरण बता, कैसे दुश्मन? कैसे दुश्मन? हमारे दिमाग में जो जहर बिठाया, कैसे दुश्मन? मुझे एक बताओ, इस वजह से मुसलमान दुश्मन है, उसका जवाब मैं देता हूं। कोई एक वजह बताओ। लेकिन दिमाग में डाला मुसलमान दुश्मन। साला फटाका फूट जाए तो टीवी पर पहले मुसलमानों का चेहरा दिखा देते हैं, संशयित 2-3 लोग आतंकवादी। अभी आरएसएस ने नया संगठन भी बनाया, इंडियन मुजाहिदीन। उसका कोई अध्यक्ष भी नहीं है, किसने बनाया जानकारी भी नहीं है।
भारत में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए ना, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने किए हैं। असीमानंद चैटर्जी, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, जोशी, कुलकर्णी, ये पकड़े गए तो असीमानंद चैटर्जी ने हाईकोर्ट में कन्फेक्शन दिया लिखकर कि उसने 27 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किए, दिल्ली में, अजमेर में, मालेगांव में। बदनाम कौन हुआ? मुसलमान हुआ। मुस्लिम बच्चे को जेल में डाल देते हैं आतंकवाद के नाम पर, उसकी छानबीन शुरू होते हैं, 20 साल बाद रिजल्ट आता है, निर्दोष था। जेल में गया तब 20 साल का, बाहर आया तो 40 साल का। जवानी जेल में चली गई। मालेगांव में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पुलिस लोगों ने रिपोर्ट भेजी, जगह पर दाढ़ी मिली, टोपी मिली। अबे ओरिजिनल दाढ़ी होगी तो वो क्या हवा में उड़ेगी क्या? मामला समझ में आ रहा है? क्या लिखा? दाढ़ी मिली, टोपी मिली। ये मुसलमानों ने ही किया। हमारे लोग तो इधर से तो पूरा गया हुआ है, इधर तो कुछ है नहीं, खाली है। पढ़ते हैं बस वही, जो किताब पढ़ते हैं वही बताते हैं, जो पेपर पढ़ते हैं वही बताते हैं, अपना तो कुछ लगाते नहीं, इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण तो कुछ आता ही नहीं है। कभी सोचा हमारे लोगों ने कि अगर दाढ़ी मिलेगी वो जगह पर तो ओरिजिनल दाढ़ी के हवा में उड़ती हुई जाएगी क्या? इसका मतलब जब गांधी जी की हत्या हुई, किसने की हत्या? नाथूराम गोडसे ने। और नाथूराम गोडसे ने क्या किया जानते हो आप? कोल्हापुर में मुड़े हॉस्पिटल है, वहां जाकर सुनता की। नाथूराम गोडसे जाति से ब्राह्मण, उसने सुनता की, दाढ़ी बढ़ाई, टोपी लगाई, फिर गांधी को मारा। और जब गांधी की हत्या हुई 48 में तो मुसलमानों की 2 घंटे पूरे देश में कत्लेआम हुई। फिर पेरियार रामास्वामी थे साउथ इंडिया के, उन्होंने रेडियो पर टेलीग्राम दिया कि अरे वो गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं, नाथूराम गोडसे है, ब्राह्मण। तब जाकर मुसलमानों की कत्लेआम रुकी। हमारे दिमाग में जहर बिठाया गया, मुसलमान हमारा दुश्मन है। अब एनआरसी आ रही है, आसाम में लागू हुई, टीवी पर प्रचार चल रहा था। क्या चल रहा था प्रचार? मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, हिंदू को नागरिकत्व देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे जो एनआरसी का विरोध कर रहे हैं उनके कपड़े चेक करो। शाहीन बाग बनाया गया, 24 घंटे एनआरसी के दौरान मुसलमानों को टीवी पर दिखाया, तो आदिवासियों को लगा, एससी को लगा, ओबीसी को लगा हमारा मामला नहीं है। लेकिन जब हमने आसाम में जो एनआरसी हुई उसकी लिस्ट देखी, 19,45,000 लोग थे, उनमें से सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे और 14,45,000 एससी एसटी ओबीसी के लोग थे। तो नुकसान मुसलमानों का ज्यादा हुआ है या एससी एसटी ओबीसी का ज्यादा हुआ है? मामला समझ में आ रहा है? अब मैं जिले घूम रहा हूं आपके, 23 जिले, ज्यादा है तो नहीं। और बंगाल भारत का ऐसा स्टेट है कि किसी भी जगह से 4-5 घंटे में पहुंच सकते हो। तो उस दौरान हमारे लोग मुसलमानों के घर देखकर क्या सोच रहे थे? हाँ, एनआरसी लागू होगी तो ये जाएगा तो ये मकान मेरा, वो मकान मेरा, वो मकान मेरा। एनआरसी कागजात मामला है, एनआरसी जो है वो डॉक्यूमेंट्री मामला है। एनआरसी होगी तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सीएए विदेशी लोगों को नागरिकता देने का मामला है, एनआरसी कागजाती डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता देने का मामला है। 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट्स 25 डॉक्यूमेंट्स है आदिवासी के पास, है। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है उसके दिमाग में बिठाया मुसलमान विरोध कर रहा है। ये इसलिए चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है। ताकि ब्राह्मणों के विरोध में इस देश में कोई विद्रोह ना हो और धार्मिक ध्रुवीकरण चलता रहे। और धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा केवल मात्र आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कांग्रेस, बीजेपी को होता है।
साथियों 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, बीजेपी ने 19 साल राज किया। कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है। हम लोगों को कहते हैं ये की है, लोग कहते नहीं अलग अलग है। कैसे भाई? अरे विरोध करते हैं एक दूसरे का। अच्छा कहां पर करते हैं? टीवी पर करते हैं और पेपर में करते हैं। हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। अरे वो टीवी पर बोलते हैं ना, वो पेपर में बोलते हैं ना, उधर तो बैठकर बढ़िया कम सस्ते में चिकन मटन खाते हैं, चाय पीते हैं। आपको थोड़ी मालूम है दिल्ली में क्या होता है। यहां पे कितने की चाय मिलती है? सांसद भवन जाओ कभी, 2 रुपए की चाय मिलती है। चिकन कितनी की मिलती है इधर? दिल्ली जाओ कभी सांसद भवन में, कैंटीन में, उधर बैठकर चाय पीते, उधर बैठकर खाना खाते हैं। हमारे विरोध का बिल अभी कांग्रेस विरोध में है, एमएसपी हटाया तो कांग्रेस का काम क्या था? विरोधी दल का क्या काम होता है? विरोध करना, गलत काम का विरोध करना। किसानों के विरोध में एमएसपी हटाई, कामगारों के 27 लाख खत्म किए, कांग्रेस ने विरोध किया। उधर विरोध नहीं करते, बाहर आकर चिल्लाते हैं। तो उनको बेचने का बोलना गधा समझ के रखा है क्या? तेरे को भेजा गाय के लिए? बाहर आकर चिल्लाने के लिए भेजा या उधर विरोध करने के लिए भेजा? साले उधर सिग्नेचर मार देते हैं और बाहर आकर जनता को बेवकूफ बनाते। और हमारा तो हजारों सालों से खाली बनाकर रखा है, इधर तो कुछ है ही नहीं। मैं बार बार करता हूं, इधर तो कुछ है ही नहीं। वो डालने के लिए तो आया हूं, मेरा वही काम है। जो ब्लैंक सॉफ्टवेयर है उसको भरो, क्योंकि हर शिक्षित आदमी जागरूक हो जरूरी नहीं है। शिक्षा अलग चीज है। आप ग्रेजुएट हो सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, आईएएस हो सकते हो, आईपीएस हो सकते हो, आईआरएस हो सकते हो, आईआईटी आईएम के स्टूडेंट हो सकते हो। एकेडमिक एजुकेशन है। कौन सा एजुकेशन है ये? एकेडमिक एजुकेशन है, जिसका उद्देश्य है करियर। पढ़ाई करियर के लिए की है। हमें जो एजुकेशन मिला सोशल एजुकेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव है माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी। एकेडमिक एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? माई एजुकेशन फॉर माई करियर। जो भी बच्चा पढ़ता है करियर के लिए, तो उसको क्या मालूम रहेगा देश में क्या चल रहा है। भारत सरकार करती है, भारत का विद्वान व्यक्ति आईएएस होता है, उसको भी 2.5 साल का ट्रेनिंग देते हैं। तो काय का विद्वान भाई तू? अगर विद्वान है तो डायरेक्ट जाना, कलेक्टर बनना। उसको भी 2.5 साल का ट्रेनिंग देते हैं। डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनाते, पंचायत पर रखते, फिर जिला पंचायत पर रहते और 10 साल का अनुभव होने के बाद फिर कलेक्टर बनाते। अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, ये विधेयक पालिका उनके नियंत्रण में, और जिनको आप अपना नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार जीताराम मांझी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी अभी उनका लड़का है चिराग पासवान, बिहार तक सीमित। शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा बिहार तक सीमित, झारखंड तक सीमित। छोटूभाई वसावा गुजरात तक सीमित। शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित। रामदास अठवले, प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको हम अपना नेता मानते वो क्षेत्रीय नेता बन गए। हमारे समाज में कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता या कोई राष्ट्रीय लेवल का पार्टी ना बने, इसलिए कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन लाया, बीजेपी ने एनडीए गठबंधन लाया। कुछ कांग्रेस के साथ मिलकर जाते, कुछ बीजेपी के साथ चले जाते। यूपीए, एनडीए, उसके आगे जाकर हमारे नेता को जाति के नेता बनाया। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादव के नेता, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता, जीताराम मांझी मुसर के नेता, अब चिराग पासवान का नेता, लालू प्रसाद यादव यादवों का नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडाओं का नेता,
छोटू भाई वसावा भील का नेता, शरद पवार महाराष्ट्र के मराठों का नेता, रामदास अठवले प्रकाश अंबेडकर मारो का नेता, हमारे नेता जाति के नेता, चमार के नेता, संताल के नेता, भील के नेता, और सोनिया गांधी देश की नेता, राहुल गांधी देश की नेता, नितिन गडकरी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, अडवाणी देश का नेता, हमारे नेता चमार के नेता है, यादव के नेता, संथाल के नेता। अब ये प्रेम कुमार गेराम जोड़ने की बात कर रहा है, सबको बता रहा है, फिर भी मेरी जाति ढूंढेंगे कि ये किस जाति का है। इतने धुरंधर है हमारे समाज के लोग, इसलिए तो जातियां बनाई ताकि हम लोग इकट्ठा ना हो पाए, कोई देशव्यापी अभियान ना चले इनका। जाति का संगठन बनाओ, आपको पैसे देंगे और कहेंगे और कार्यक्रम लो, और चाहिए और लेकर जाओ। जिले का संगठन बनाओगे तो भी पैसे देंगे, राज्य का संगठन बनाओगे तो भी पैसे देंगे, और कहेंगे समाज से मांगने की जरूरत नहीं, कितना चाहिए आंकड़ा बोलो उतना आ जाएगा, आदमी लेकर आ जाएगा, चलाओ अपनी दुकान। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जोड़ने की बात करोगे, पैसा देना छोड़, टीवी पर चेहरा भी नहीं दिखाएंगे टीवी पर जो होता है चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। मेरा जिम्मेदारी जेएनयू में लगाया गया था दिल्ली में, मैं 1.5-2 महीना फील्ड वर्क किया दिल्ली जेएनयू में, तब कन्हैया कुमार उधर ही था, तब कन्हैया कुमार नहीं था, टीवी पर आने का ही था। तो जब मैंने मीटिंग ली तो वो मीटिंग में बैठा हुआ था, उपस्थित था, छात्र नेता था। मैं सहारनपुर गया ट्रेनिंग कैंप लेने के लिए, तो सहारनपुर का मालूम है ना, घर जलाए संगठन बना, चंद्रशेखर रावण नाम सुना होगा, वो ट्रेनिंग कैंप में था मेरे। ये लाइव चल रहा है जो बातें बता रहा हूं। उनको टीवी पर दिखाएंगे, लेकिन बामसेप का बी और हमारा पी और वामन मेश्राम साहब का डब्ल्यू कभी नहीं दिखाएंगे, अक्षर भी नहीं दिखाएंगे, साला ये नाम भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा तेरी मीडिया की भी हमें जरूरत नहीं है, हम सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग करेंगे। मेश्राम साहब ने 2 करोड़ रुपए अलोकेटेड कर दिए, खड़ा करो अपना खुद का मीडिया। अभी हम लोग सेंट्रल का और हर स्टेट का रीजनल मीडिया खड़ा करने वाले, रीजनल बोली भाषा में मीडिया खड़ा करेंगे। अभी अगर दुश्मन के विरोध में अगर लड़ाई लड़नी है तो खुद को आपको हर चीज में सक्षम बनना होगा। तो ये जो विधेयक पालिका है जहां पर विधेयक पारित होते हैं, वो विधेयक पालिका उनके नियंत्रण में, कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होगा तो भी उसको नहीं है, अनफड़ हमारा सांसद होगा तो उसको दिया है संविधान ने कानून बनाने का अधिकार। कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो कानून आते हैं अमल होने के लिए एग्जीक्यूटिव कमिटी में। दूसरा पिलर है कार्यपालिका, जहां पे आईएएस अधिकारी होते हैं। 72% आईएएस ब्राह्मण है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो जल रहा है ब्राह्मण से, भाई आप भी रात दिन मेहनत करो, आप भी आईएएस बनोगे। तो 70 के दशक तक हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तथाकथित आजादी के 1970 तक हमारे समाज में कोई पढ़े लिखे नहीं थे क्या? कोई था आपके 1970 के पहले का कोई ग्रेजुएट है आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में? पढ़े लिखे नहीं थे। तब ब्राह्मण लिखकर भेजता था कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट। अभी लाखों करोड़ों बच्चे हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर बाहर आए, अभी क्या कहते हैं? कैंडिडेट अवेलेबल बट दोज अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। आप कहते हो आप रात दिन अभ्यास करो, आप भी आईएएस बन जाओगे। अरे भाई इधर लगा दी, ओबीसी के 314 बच्चे 2015 में आईएएस हुए, ट्रेनिंग हुई, बस ज्वाइन होना था, क्रीमिलियर लगाकर रिजेक्ट कर दिया। 72% आईएएस ब्राह्मण है। करीबन 90 जिलों के आसपास कलेक्टर पूरे भारत में हम एससी एसटी ओबीसी के हैं,
और करीबन 557 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 3.5%। संविधान क्या कहता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई 3.5 होना चाहिए। 72%। रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी SC ST OBC के लोगों ने, शहीद हुए। महाराष्ट्र के मराठा शहीद हुए, गुजरात के पटेल शहीद हुए, हरियाणा के जाट शहीद हुए, राजस्थान के गुर्जर शहीद हुए। ब्राह्मण ने लकड़ी भी नहीं उठाई, 10% रिजर्वेशन दिया। अब 72 है, अब 10 प्लस कर दीजिए, 82% रिजर्वेशन कार्यपालिका में, शासन प्रशासन में ब्राह्मणों का। तीसरा पिलर है न्यायपालिका, 98% जज ब्राह्मण। सुप्रीम कोर्ट के 36 जज होते हैं, उनमें से 33 ब्राह्मण। कौन सी केस चलेगी आपकी? लाखों केसेस पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट, ऑल इंडिया में हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, 582 ब्राह्मण, 18 SC OBC माइनॉरिटी का, और भारत के इतिहास में आदिवासी का अभी तक जज नहीं बना। तथाकथित आजादी में इतने साल हुए, 74 साल हो रहे, अभी तक हाईकोर्ट का जज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल उनके, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर उनके, ट्रेडिशनल मीडिया में जो महाराज है ना, महाराज नहीं है वो, RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक है। हमारा दिमाग चौपट करने के लिए गांव गांव घूमते रहते, सप्ताह लगाते हैं। वो प्रचारक है, जैसे मैं बाम से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रचारक हूं। RSS के प्रचारक को एक इंस्ट्रक्शन होती है, सब कुछ करना, बामसेट के लोगों से भिड़ने का नहीं, सब कुछ करने का। इसलिए हमारा एक प्रचारक उनके 1000 प्रचारकों से भारी होता है। वोकल मीडिया में हमारी 4500 बोली भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारी बोली भाषा को मान्यता नहीं। 3.5% अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, उनके बोली भाषा को मान्यता है। जो गटर बदलने की बात मैंने आप लोगों को की, ये वो गटर है। समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में, देश को चलाने की यंत्रणा एक जाति के नियंत्रण में, इस व्यवस्था के ऊपर ब्राह्मणों का अनियंत्रित नियंत्रण है, जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। जहां से गंदा पानी बाहर आ रहा है, उस गंदे पानी को हम लोग बदलना चाहते हैं, पानी को नहीं, गटर को बदलना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, चलेगा। यह आंदोलन कल होने वाला नहीं है, परसों होने वाला नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 10 साल का हम लोगों ने टास्क लिया है, 10 साल का हम लोगों ने टास्क लिया है। 10 साल में किसी भी परिस्थिति में 6 लाख गांव में और 6000 जाति में यह संगठन हम लोग पहुंचाएंगे, कोई हमारे साथ आए या ना आए। लेकिन गलत तरीके से ना समाज को तैयार करेंगे, और गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को साथ में भी लेकर काम नहीं करेंगे। जो उद्देश्य, विचारधारा और कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर जो कार्य करेगा वो इधर रहेगा, जो नहीं करेगा एक तो वो खुद निकल जाना है, नहीं तो निकाल देंगे। क्योंकि किसी एक गलती की वजह से अभी करोड़ों पीढ़ियों को गुलामी में हम धकेलना नहीं चाहते, हमारी एक गलती की वजह से। इसलिए उद्देश्य, विचारधारा, यह उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, इससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। विचारधारा है 15 बनाम 85, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कार्य प्रणाली है, जो संगठन ने कार्य प्रणाली बनाई है, उस कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। जो कार्य दिया है वही करना होगा, किसी अन्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। क्योंकि आप संगठन में आने के पहले आपकी पर्सनल लाइफ होती है, जब आप संगठन में आते हो आपकी पब्लिक लाइफ शुरू होती है। कभी हम लोग सोचते नहीं। और हर व्यक्ति को 4 टेस्ट देनी पड़ती है। पहले परिवार टेस्ट लेता है, क्योंकि आपने शादी की है, बीवी है, बच्चे हैं, तो जवाबदार है या बेजवाबदार है, परिवार टेस्ट लेता है। दूसरी टेस्ट समाज लेता है, कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं, ब्राह्मणों के विरोध में बोल रहा और कई ब्राह्मणों के साथ में उठक बैठक तो नहीं कर रहा है पीठ पीछे। क्योंकि आपकी 2 आंखें होती है, समाज की हजारों आंखें होती है।
और जब आपकी पब्लिक लाइफ शुरू होती है तो समाज हजारों आंखों से देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तीसरा, संगठन टेस्ट लेता है, जो काम इसको दिया गया वही कर रहा है या नहीं, या कहीं दूसरे कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। मामला समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है ना, एयरफोर्स भी उसमें आता है, रेलवे भी आता है उसमें, WCL भी आता है या नहीं? लेकिन क्या WCL वाले रेलवे में हस्तक्षेप करते हैं क्या? रेलवे वाले एयरफोर्स में हस्तक्षेप करते? नहीं करते ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, कार्य निर्धारित है, सिर्फ निष्पादन करना होगा। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, ये गटर को बदलने का अभियान है। हम लोग मट्ठी का बांध बांधना नहीं चाहते, गटर को बदलना चाहते। थोड़ा समय लगेगा, चलेगा, पेशेंस रखना होगा। 42 साल से यह अभियान चल रहा है, पेशेंस रखना होगा। दुश्मन का चरित्र है, संगठित शक्ति से वो हमको गुलाम बना रहा है। हम लोगों को भी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। अगर अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो आज भी पिटाई हो रही है, कल भी होंगी। छत्तीसगढ़ में हो रही है आदिवासियों की पिटाई, अलग लड़ाई। ओडिशा में हो रही है, मध्य प्रदेश के 650 गांव जलाए गए, घर नहीं गांव जलाए गए। मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप अलग अलग अपने जाति का, जिला का, राज्य का संगठन बनाकर भी काम करोगे तो बंगाल में कितने % आदिवासी है? कितने हैं? 6%। कितने हैं? 6%। बंगाल में रिजर्व सीट कितनी है? बंगाल में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 294। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 148। आप कितने % हो? 6%। रिजर्व कितनी सीटें है बंगाल में? 16। सरकार बनाओगे? जाति का संगठन बनाकर काम करोगे, जिला का संगठन बनाकर काम करोगे, सरकार तो भी बनाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको तो टीएमसी के पास जाना होगा, सीपीआई के पास जाना होगा, कांग्रेस के पास जाना होगा, बीजेपी के पास जाना होगा। जिन्होंने सत्यानाश किया उनके पास जाकर या उनको पास में लेकर कल्याण होगा क्या? है कल्याण होगा? शेड्यूल कास्ट के भी लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो शेड्यूल कास्ट बंगाल में सिर्फ 22% है, सीटें सिर्फ 68 रिजर्व है। सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट के भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, संभव नहीं है। इसीलिए ये हजारों जातियों को बाबा साहब आंबेडकर ने 4 कैटेगरी में लाया, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। हमें सिर्फ 4 कैटेगरी को इकट्ठा करना है। इकट्ठी करने वाली विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना होगा, भावनिक नहीं कि पहले इधर जुड़ाएंगे। बहुत खास बात बता रहा हूं, ये थीम है, अभी समय है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो समाज जाग जाएगा, समाज जाग जाएगा। कैसे जागेगा? बामसेप मैदान में है, समाज जरूर जागेगा। और जब समाज जागेगा और समाज को जब ये जानकारी मिलेगी कि इन्होंने हमारे साथ गलत विचारधारा से हम लोगों को तैयार किया, जो आजादी पहले मिलनी चाहिए थी, इसकी वजह से साला आजादी इतने साल बढ़ गई। कितने जीते खाओगे? फिर घूमने फिरने लायक रहेंगे? घर से बाहर निकलने लायक रहेंगे? हैं? इसलिए वामसेप ने उन लाखों संगठनों को भी एक अवसर दिया और वामसेप ने एक मंच बनाया, बहुजन क्रांति मोर्चा। और उन लाखों संगठनों को कह रहे हैं, संगठन बनाया है मत छोड़ो। चलो बनाया है तो छोड़ो मत। ये बहुजन क्रांति मोर्चा एक मंच है, संगठन नहीं है, और ना ही इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप भी अपना झंडा दंडा एजेंडा लेकर आइए, हम भी अपना झंडा दंडा एजेंडा लेकर आते हैं। अगर मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ते हैं, आज हमारी पिटाई हुई है, हो रही है, कल हम पिटने लायक बन सकते हैं। अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो ना राष्ट्रीय साधन संसाधन निर्माण होंगे, क्योंकि पैसा लाखों संगठनों में समाज का डिवाइड हो जाएगा, समय लाखों संगठनों में डिवाइड हो जाएगा, बुद्धि लाखों संगठनों में डिवाइड हो चुकी है। अब हम लोगों को एक मंच पर आकर ये लड़ाई लड़नी होगी।
ये मात्र विकल्प है। और इस विचारधारा को जो मानते उनको साथ में लेकर चलना है। जो नहीं मानते तो उनकी गुलामी उनको मुबारक, उनकी आजादी उनको मुबारक। ये क्राइटेरिया, ये समझाने के लिए आपके बालूरघाट में आया हूं। ये तरीका है हमारा कार्य करने का। हमारे साथ 10 लोग आए ना आए चलेगा, लेकिन गलत तरीके से हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं चाहते। जो बात है वो स्पष्ट बताना चाहते, कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहते। 2006 से काम कर रहा हूं, अभी 15वां साल मुझे चल रहा है। करीबन 30 स्टेट में मेरे प्रोग्राम हुए, 322 जिलों में, ऑल इंडिया में। यूट्यूब पर जाओगे करीबन 600-500 स्पीचेस मेरे मिलेंगे आप लोगों को। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन अभी एकमात्र विकल्प है, अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो समाज का सत्यानाश होगा, मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे तो आजादी मिलेगी। वाम से बाज 31 राज्य का संगठन है, 550 जिलों का संगठन है, करीबन 4,500 तहसील में हमारी यूनिट्स है। भारत में 55,000 ब्लॉक है, 22,000 ब्लॉक में यूनिट है। भारत में 7,20,000 गांव है, 2.5 लाख गांव में हमारी यूनिट है। 10 साल का टारगेट है। जिला से लेकर सेंट्रल तक काम करने वाले करीबन 2,000 पूर्णकालीन प्रचारक है। हमें 10,000 प्रचारक बनाने होंगे, 5,000 तहसील पर रखने होंगे। आज हमारे पास 5 बामसेप के भवन है, 2 आपके बंगाल में ही है, 2 महाराष्ट्र में है, 1 यूपी में है। बंगाल में कलकत्ता में है दमदम चिड़िया मोड़, और एक मल्लिकपुर। मल्लिकपुर 196 ऑफिसेस है, कुछ किराए पर लिए हुए हैं, कुछ खरीदे हुए हैं। करीबन 350 के आसपास 2 व्हीलर है, और संगठन के पास में 46 4 व्हीलर है। 2 प्रिंटिंग प्रेस है, एक महाराष्ट्र में, एक यूपी में है। डेली पेपर निकलते हैं, 2 हिंदी और मराठी, 7 भाषा में साप्ताहिक छापते हैं। बहुजनों का बहुजन भारत 2 भाषा में मैगजीन छापते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और 258 टाइटल के ऐसी किताबें छापते हैं। ये एनआरसी के ऊपर मैंने किताब लिखी, ऐसे 258 टाइटल की किताबें हैं, अलग अलग टाइप, एलपीजी, भूमि अधिग्रहण, प्राइवेटाइजेशन, आदिवासियों की समस्या, ऐसे अलग अलग टाइटल 258। साथियों, एमएन नाम का टीवी चैनल सोशल मीडिया में हम लोग चलाते हैं। आज करोड़ों लोग इस चैनल को देखते हैं। यह कार्यक्रम जो चल रहा है ना, करीबन 4-5 हजार लोग देख रहे होंगे, या व्यूज होंगे उतने। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई गई, दुश्मन जितना मजबूत है उसको साधारण नहीं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, पत्थर को सिर मारोगे तो नुकसान सिर का होगा, और सिर मारने वाला काम हम लोग नहीं करना चाहते। मुझे जो बातें बतानी थी आपको, वो बातों मैंने आप लोगों को बताई। अब मैंने आप लोगों को बातें बताई, आपने सुना, शांत तरीके से सुना। अब आपके कोई सवाल अगर होंगे जो मैंने बातें कही उस पर, तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं इधर ही हूं 15-20 मिनट, लेकिन मन में अगर कोई सवाल निर्माण हुआ है तो मुझे पूछना है। मैं जाने के बाद चर्चा करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझे क्या? हमारे लोग बहुत धुंधर होते हैं, जवाब देने वाला निकल जाता है, पीठ पीछे चर्चा करते रहते हो, कोई मतलब है? सभ्यता उसे कहते हैं सवाल खड़ा हुआ मुझे पूछो। मूर्खता उसे कहते हैं मेरे जाने के बाद अगर पीठ पीछे चर्चा करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो सवाल पूछो। धन्यवाद।